স্বপ্ন একজন সফল ডাক্তার হওয়ার, নিজের সাধ্যের মধ্যে বিদেশে গিয়ে ক্যারিয়ার করতে চান? সুযোগ আপনার হাতের কাছেই। মিশন এমবিবিএস, বেস্ট অ্যাব্রড কনসালটেন্সি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। স্বপ্ন পূরণে আজই ভর্তি হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 9732122744। বিধানসভার কৌশল মেলার সহদেবকে আপনাদের সামনে দু চার কথা বলবেন। स्वागतम मुकुल राय स्वागतम भारत माँ की सुपुत्र कैलाशी स्वागतम भारत माँ स्वागतम हाथ तुले जोड़े सबाई मिले बोले मुकुल राय स्वागतम कैलाशी स्वागतम सबाई दुआ को बड़े बोले बोले भारत माता की। বলতে চাই, আপনি তো আমাদেরকে ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে দেখতে দেবেন বলেছিলেন। যদি 2021-এ আমরা ক্ষমতায় 2021-এ যে স্বাধীনতা সংগ্রাম আসছে তার জন্য সবাইকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য আগামী দিনে এই রায়নার বুকে, তার আগে আপনাদের আরেকবার বলে রাখছি, যে সমস্ত জেলার সম্পাদক মন্ডলী বলতে এসছি আগামী 8ই মার্চ, আগামী 8ই অক্টোবর ভারতীয় যুব মোর্চা পশ্চিমবঙ্গ শাখা নবান্ন সেই সভায় যুব মোর্চার সভাপতি ওই সভায় যাওয়ার জন্য আপনাদের আমন্ত্রণ জানাতে এসছে। সাথে করে নিয়ে এসছে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় শাখার সাধারণ সম্পাদক তথা পশ্চিমবঙ্গ অধ্যক্ষ ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক কৈলাস বিজয়বর্গীজি। আজকে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি একটা কথা বলি, আমি কিন্তু 8, 9, 10 আমি রায়নার প্রত্যেকটি মাটি, প্রত্যেকটা ধূলিগড়ার সাথে পরিচিতি আছে। আমি জানি যে এই মুহূর্তে রায়নার পরিস্থিতি কি আছে। জেলা সভাপতি সন্দীপ এখানে আছে। রায়নায় একটা টাইমে অনেকক্ষণ ধরে আপনারা বসে আছেন। আমি শুধু আপনাদের কাছে আমন্ত্রণ করতে এসেছি যে আগামী 8 তারিখ সমস্ত প্রতিকূলতাকে ওভারকাম করে আপনাদের নবান্ন অভিযানে সামিল হতে। আমি জানি যে ট্রেন চলছে না, বাস বা গাড়ি, সেই সম্বন্ধে যতটা মানুষ যাওয়া দরকার সেটা প্রোভাইড করার ক্ষমতা আমার যুব মোর্চার নেই। তা সত্ত্বেও আপনাদের কাছে আবেদন করতে এসেছি সমস্ত প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে আপনাদের আগামী 8 তারিখ যেতে হবে। এখানে গুড্ডু ভাই আছে, আমরিব আছে, এখানকার সভাপতি আছে। আমি মাইক ছেড়ে দিচ্ছি বলার জন্য কৈলাসজিকে বলি, এখানে প্রচুর মায়েরা, প্রচুর বোনেরা এইখানে এসে সমাবেত হয়েছে। এই আলোটা নেমে গেলে
রাতের পর রাত রায়না রেখে। এবারও ধরুন আমি আস্তে আস্তে যুব মোর্চার ছেলেদের সাথে বলছিলাম যে বাংলায় জিতবো বলছো, আর গত লোকসভা 1 বছর আগে হয়েছে, মোদিজিকে সামনে রেখে ভোট হয়েছে, তবুও বর্ধমানে একটা বিধানসভা কেন্দ্রে আমরা জিততে পারি। সেটা হচ্ছে দুর্গাপুর 1, দুর্গাপুর 2 আর বোলপুর 3। কিন্তু আমরা জিততে পারি না। এই যে খণ্ডঘোষ সৌমিত্র এমপি হয়েছে, খণ্ডঘোষের ব্যবধান আছে 30,000। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে এই আবেগকে, যে আবেগ আমরা দেখছি, সেই আবেগকে সংগত করে আমাদের জিততে হবে। আমি 2010-এর আগে এই বাজারে তখন আমি আপনাদের সাথে ছিলাম, সে হেঁটে যাচ্ছিলাম, আমি দেখেছি দুদিকে দাঁড়িয়ে সিপিএমের তাণ্ডব। আজ খালি পতাকাটা পাল্টেছে, তাণ্ডবটা ঠিকই আছে, কিন্তু সেটার জায়গায় এখন ওই শাসক দল এসে গেছে, শাসক দল এসে গেছে। তাই স্বাভাবিকভাবেই আজকের এই জনসভায় আমি খুব উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত। আমি সন্দীপকে বলবো, যুব কংগ্রেস যা যুব মোর্চা যা করছে করুন। আমরা যারা সিনিয়র মানুষ, আমরা যদি একটু সমমতভাবে করতে পারি, তাহলে নিশ্চিত করে আমরা বর্ধমানে বিপ্লব ঘটিয়ে দেবো, বর্ধমানে বিপ্লব ঘটিয়ে দেবো। তাই এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি আপনাদের কাছে সময় নিচ্ছি না, কৈলাসজি বক্তৃতা করবেন। আমি শুধু আপনাদের কাছে আবেদন করতে এসেছি, এবং আমি শুধু আপনাদের কাছে আবেদন করতে এসেছি, সমস্ত প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে আগামী 8 তারিখ যেভাবেই হোক নবান্ন অভিযানে সামিল হই, যাতে একটা বড় জমায়েত করে আমরা প্রমাণ করতে পারি, প্রমাণ দিতে পারি বাংলার মাটি তৈরি আছে। তাই সৌমিত্র যে পদক্ষেপগুলো নিচ্ছে, আমি তাদের পূর্ণ সমর্থন করি, এবং ও যুব মোর্চার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ও যুব সমাজের মধ্যে একটা আবেগ সঞ্চারিত করতে পেরেছে। একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে যুবকদের বোঝাতে পেরেছে যে আমরাও পারতে পারি। সেই জায়গায় দেখে আমি সবাইকে বলি যে হাত দুটো মুষ্টিবদ্ধ করে বলা হয়, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। একটা কথা মনে রাখুন, আমি বলি 2000 একটু আগে কৈলাসজি এই রাজ্যের দায়িত্ব নিয়েছে। বাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টি জিততে পারে এই বোঝাটা দিয়েটা কিন্তু যদি কারুর অবদান থাকে, সেটা কৈলাস বিজয় বর্গীজি। তাই আমি সবাইকে বলবো, ওনাকে বলার সুযোগ করে দিচ্ছি। এবং যেহেতু সন্ধে হয়ে গেছে, রাত্রি হয়ে গেছে, আমি সৌমিত্রদেরও বলবো যে নিশ্চয়ই আমাদের ভয় নয়, কিন্তু জায়গা বুঝে কাজ করতে হবে, এবং আগামী দিন লড়াইটা ছোট নয়। একটা টাইমে 35 বছরের বাম অপশাসনকে সরিয়ে সরকারে এসে যারা সরকারে এসেছিল, তারা আজকে লোকের কাছে নিজেদের বলতে লজ্জা পায় যে আমরা তৃণমূল এবং আমরা সরকার। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের এই লড়াই কিন্তু খুব কঠিন লড়াই, এবং সেই কঠিন লড়াই জিততে হবে। এটা বজায় রেখে যুব মোর্চার ভাইরা যে আবেদন করেছেন সেটা ভালো। इधर चारों तरफ लोग दिख रहे हैं, सब दूर से इतनी जोर से आवाज़ आना चाहिए कि हमारे देश की सीमा पर मालूम है आपको, चीनी की सेना खड़ी हुई है, मालूम है कि नहीं मालूम है? और इधर मोदी जी ने अपनी सेना भी भेज दी है, वो भी खड़ी हुई है। उन्होंने 10,000 भेजी, चाइना ने, तो मोदी जी ने 20,000 भेज दी। उन्होंने 4 विमान भेजे, तो मोदी जी ने 8 विमान भेजे और 1 रेफल भेजा। तो चाइना के राष्ट्रपति की पतलून गीली हो गई, इतना डर गया वो।
तो ये भारत माता की जय की आवाज कहाँ तक जाना चाहिए? उस देश की सीमा पर जो जवान हमारे देश की रक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़कर खड़ा हुआ है, तो उसके पास तक आवाज जाना चाहिए। बोलिए भारत माता की जय। ऐसे हनुमान जी की मुट्ठी बांध के बोलो जरा, इधर भी झाड़ के नीचे जो खड़े हुए हैं, ऐसे हाथ ऊपर होना चाहिए सबके। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित इस बंगाल की राजनीति के चाणक्य और अभी अभी नड्डा जी ने उनको अपनी टीम का सदस्य बनाया है, उपाध्यक्ष बनाया है, जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर मुकुंदा का अभिनंदन करें। जैसे हमारे मुकुंदा वाले सौमित्र खान जी, जरा तालियां बजाकर स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्ष और बहुत ही जुझारू नेत्री। एक समय था जब पुलिस में एसपी थी, ममता जी जो कहती थी वो करती थी। जो ममता जी ने बोला, ममता जी कहती दिन है तो ये दिन बोलती थी, ममता जी बोले रात है तो रात बोलती थी। ऐसी हमारी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भारती दीदी के लिए जोरदार तालियां बजाकर भारती दीदी का स्वागत करें। आप लाते हैं जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो। नरेंद्र मोदी जी किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये भेजना चाहते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को खेती करने में सहायता मिले। सारे देश के किसानों को 90,000 करोड़ रुपया मिल गया, किंतु हमारे बंगाल के किसान भाइयों को पैसा नहीं मिला। दीदी कहती है कि पहले मेरे को दो, मेरे खाते में जमा करो। सारे देश के अंदर प्रधानमंत्री किसान के खाते में सीधे 6,000 रुपये भेज देते हैं, पर दीदी कहती पहले मेरे को दो, क्योंकि मेरे को कट मनी लगती है। आप सब लोगों का मोदी जी के पास है, किंतु दीदी रोक रही है। क्या ऐसी दीदी को मुख्यमंत्री रहना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, प्रधानमंत्री जी आपको पैसा देना चाहते हैं, दीदी रोक रही है। आज कोविड चल रहा है, कोविड में लोग बीमार हो रहे हैं, प्रधानमंत्री आयुष योजना के माध्यम से सारे देश के लोग इलाज करा रहे हैं, पर पश्चिमी बंगाल में आयुष योजना लागू नहीं की। हमारे गरीब लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, दवा कुछ भी नहीं है। गरीब जाए तो कहाँ जाए, वो बेचारा ऊपर जा रहा है, स्वर्ग में जा रहा है। दीदी का इलाज भी नहीं है, दवा भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आयुष योजना के माध्यम से बंगाल के सब लोगों का इलाज कराना चाहते हैं। दीदी नहीं चाहती है। पश्चिमी बंगाल में लोग मर रहे हैं। क्या ऐसी मुख्यमंत्री को रहने का अधिकार है? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, ऐसी दीदी को मुख्यमंत्री रहना चाहिए क्या? नहीं। दीदी बड़ी सीधी सादी बनकर सफेद साड़ी पहनती है सस्ती, चप्पल पहनती है सस्ती। आप नाटक देखिए, नाटक कितनी बड़ी नाटकबाज है। और उनका भतीजा एक, मैं उसको बोलता हूँ छोटा पप्पू। एक बड़ा पप्पू दिल्ली में, मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है, बड़ा पप्पू दिल्ली में वो कहता इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकलता है। ये छोटा पप्पू इस गाय की तस्करी करके सैकड़ों की लाख हजारों की संख्या में गाय भेजता है और बांग्लादेश से सोना लाता है। ये इधर से गाय डालो, उधर से सोना निकालो, ये छोटा पप्पू काम कर रहा है। क्या ऐसे लोगों को सत्ता में बने रहने का अधिकार है क्या? नहीं। कोयले की खदान में छोटे पप्पू के लोग अवैध रूप से पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर कोयले की खदान में चोरी कर रहे हैं, कोयले की चोरी कर रहे हैं। क्या कोयले की चोरी करने वाले लोगों को सत्ता में रहने का अधिकार है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं। और इसलिए आपको निर्णय करना है। ये मुकुंदा हमारे
मुकुंदा हमारे, यदि ममता जी को ममता जी बनाने का किसी को एक नेता को श्रेय जाता है तो हमारे मुकुंदा को जाता है। मुकुंदा को धोखा दे दिया। जो मुकुंदा की नहीं हुई वो प्रदेश की जनता की हो सकती है क्या? नहीं। भारती बहन ये जैसा बोलती थी ममता जी वैसा करती थी। हमारे भी कई लोगों को इन्होंने झूठा फंसा दिया जब एसपी थी, जब पुरलिया, वहाँ पर पुरलिया में जैसा ममता जी बोलती थी, ये ममता जी इनकी भी नहीं हुई। इनको भी गिरफ्तार करना चाहती, इनको भी जेल में भेजना चाहती है। अरे जो भारती दीदी की नहीं हुई वो प्रदेश की जनता की हो सकती है क्या? जो पुराने लोग बैठे वो जानते हैं, जब यहाँ पर सीपीएम की सरकार थी और ममता जी आंदोलन करती थी, पुलिस डंडे से पीटती थी। एक बार ममता जी को पुलिस ने इतनी पिटाई की कि वो 3 पहिए की साइकिल में आ गई, 3 पहिए वाली बेंच पे चल नहीं पारी, कमर में चोट लगी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा चिंता करो ममता जी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। विधानसभा के चुनाव होने वाले थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने सेंट्रल फोर्स लगाकर उस विधानसभा चुनाव में जो सीपीएम धांधली करती थी उस धांधली को रोका। ममता जी मुख्यमंत्री बन गई। ममता जी मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने धोखा दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया। जिस भारतीय जनता पार्टी ने, जिस अटल बिहारी वाजपेयी ने ममता जी को मुख्यमंत्री बनाया, जब वो अटल बिहारी वाजपेयी की नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई, तो आपकी हो सकती है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हो सकती है आपकी? नहीं। वो तो इस प्रदेश के 30% लोगों की है। ऐसे लोग जो यहाँ पर, मुझे पता लगाया कि यहाँ पर बड़ा आतंक है, यहाँ बम बनते, यहाँ गोलियां पिस्तौल बनती हैं, यहाँ लोगों को चमकाया जाता है। चुनाव मालूम है कितने महीने बाद होने वाले हैं? 7 महीने बाद चुनाव होने वाले। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। मैं सारे प्रदेश में घूम रहा हूँ, बंगाल में जिधर से जाता हूँ नारे लगते हैं, जय जय श्री राम। क्या नारा लगता है? जय श्री राम। जोर से बताओ कौन सा नारा लगता है? जय श्री राम। जिधर से निकलता हूँ मैं जय जय श्री राम का नारा लगता है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, मोदी जी के नेतृत्व में हम पश्चिमी बंगाल का विकास करें। ये लोग तस्करी करते हैं, जो गाय की तस्करी करते हैं, जो अवैध घुसपैठी है, इन सब को कहाँ जाएंगे पता है? जेल में। जेल में कहाँ जाएंगे ये सब लोग? जेल में। गलत काम करने वाला व्यक्ति मोदी जी के नेतृत्व में बाहर नहीं रह सकता। इस बंगाल के अंदर मोदी, ममता दीदी के नेतृत्व में आतंकवाद पनप रहा है। जंगल महल में नक्सलवाद पनप रहा है। ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं? ये बांग्लादेश के घुसपैठे हथियार लेकर आ रहे हैं। इस प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि इस प्रदेश में आतंकवाद बढ़ा, यदि इस प्रदेश में नक्सलवाद बढ़ा, तो क्या प्रदेश का विकास होगा? क्या होगा? क्या जोर से बताओ। आतंकवाद और नक्सलवाद बनने से सिर्फ हत्याएं होती है, सिर्फ लूटपाट होती है, सिर्फ गरीबों को दबाया जाता है। इन सब टीएमसी के हथकंडों को समाप्त करना है कि नहीं करना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और ममता जी कितना नाटक करती है, कितना डबल गेम खेलती है। मुकुल दा, आपसे अच्छा ममता जी को कोई नहीं जानता। कोई जानता है क्या ममता जी को मुकुल दा के अच्छा? मुकुल दा ने ममता जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का संकल्प लेकर उनको बैठा दिया। अब उनने संकल्प ले लिया कि अब ममता जी को नीचे उतारेंगे कुर्सी से। क्यों मुकुल दा, उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? ये संकल्प लिया मुकुल दा ने। क्यों? इसलिए कि सबने सोचा था, सारी बंगाल की जनता ने, कि ममता जी मुख्यमंत्री बनेगी तो गरीबों का भला करेगी, क्योंकि वो गरीब बस्ती में रहती है आज भी। पर क्या गरीबों का भला हो रहा है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं। प्रधानमंत्री जी 1 रुपये किलो में अनाज भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने फ्री में अनाज भेजा कि जाओ गरीबों को बांटो।
क्या मिलता है क्या आप लोगों को? गरीबों का अनाज मिलता है क्या? ये टीएमसी के लोग, टीएमसी का सिंडिकेट सब ये खा जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान बना कर देने का काम कर रहे हैं, पर टीएमसी के पंच सरपंच कट मनी चाहिए, कट मनी चाहिए। अरे तूफान आया, तूफान में 1000 करोड़ रुपया मोदी जी ने भेजा कि जाओ जिनका नुकसान हुआ उनको दो। ममता जी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को दे दिया, जिनके 3-3 मंजिला मकान थे और जिनके झोपड़े टूट गए, जिनके मकान उड़ गए, जिनकी छत उड़ गई, वो बेचारे आज भी इंतजार कर रहे हैं। क्या ऐसी सरकार को इस प्रदेश में बना रहना चाहिए? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो गरीबों का पैसा खाते हैं। नोटंकी की भी हद होती है। क्या नोटंकी करती है ममता जी? सफ़ेद साड़ी पहनती है 200-400 रुपये की, चप्पल 200-400 रुपये की पहनती है, पर उनका भतीजा है ना छोटा पप्पू, वो जब आप उसका चश्मे की फ्रेम देखना, 4 लाख रुपए की खाली चश्मे की फ्रेम है, उसकी फ्रेम 4 लाख। उसके जूतों देखो आप, 10,000 से 25,000 के 1 दर्जन से ज़्यादा घर में उसके जूते, जिधर जाता है जूते चप्पल अलग पहन कर जाता है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? बहुत ईमानदारी का चोला पहनकर आपने इस प्रदेश की जनता को ठगा है। अब इस प्रदेश की जनता आपको पहचानने लगी है। पहचानने लगी है कि नहीं पहचानने लगी है? आप सब समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ममता जी को हमने मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था कि इस प्रदेश के गरीबों की गरीबी दूर होगी, बेरोजगार नौजवानों की रोजगारी मिलेगी। पर इस प्रदेश में ममता जी के आने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद एक भी उद्योग नहीं आया। हमारे नौजवान पढ़ते हैं, लिखते हैं, नौकरी की तलाश में बंगाल में घूमते हैं, सब दूर, कहीं नौकरी नहीं। बल्कि ममता जी के राज में 10,000 उद्योग और बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यहाँ उद्योग लगेंगे, पूरे प्रदेश में उद्योग लगेंगे। हमारे नौजवान को नौकरी की तलाश में देश में भटकना नहीं पड़ेगा। हर जिले के अंदर उद्योग लगेंगे, हर जिले के अंदर वहाँ के नौजवान को रोजगार मिलेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और इसलिए मित्रों, बहुत लंबा समय नहीं लूँगा, 4 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और अंधेरा भी बहुत हो रहा है और यहाँ खतरा भी मेरे को बताया बहुत है, गुंडागिर्दी बहुत है। आप लोगों को घर सुरक्षित पहुँचना है, इसलिए लंबा समय नहीं लेता हूँ। सिर्फ आपसे वादा करना चाहता हूँ, क्या इस प्रदेश में आपको मोदी जी की सरकार चाहिए? हाँ। अच्छी सरकार चाहिए? हाँ। ऐसी सरकार जो सिंडिकेट समाप्त करे चाहिए? हाँ। जो कट मनी नहीं ले, ऐसी सरकार चाहिए? हाँ। जो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे, ऐसी सरकार चाहिए? क्या इस प्रदेश में महिलाओं का सम्मान बढ़ाए, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर चाहिए? तो मैं पुलिस अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, याद रखो, सरकार हमारी आ रही है। वो सब पुलिस अधिकारी जो यहाँ गलत धंधे वालों से मिले हुए हैं, उन सब की लिस्ट हमने बना ली है। याद रखना, नौकरी करना मुश्किल कर देंगे। हम आएंगे ना, सबसे पहले तो 2-4-5 जेल बड़ी बनाएंगे, इन सब लोगों को वहीं फंसाएंगे। जो अधिकारी यहाँ पर ईमानदारी से काम करेगा, अच्छा काम करेगा, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्मान पाएगा। पर जो अधिकारी यहाँ पर जाति कर रहा है, जो अधिकारी ममता जी की साड़ी पकड़ के भारत के संविधान को नहीं मानता, सिर्फ ममता जी बोले वही संविधान है, ऐसे अधिकारियों को जेल की शिक्षों में हम पहुँचाने का काम करेंगे। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, चमकने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रदेश में मोदी जी की सरकार बनने वाली है, मोदी जी का राज आने वाला है। पूरे देश में मोदी जी का राज है, पर बंगाल में ममता जी उनकी योजनाओं को गरीबों तक नहीं पहुंचाने देना चाहती। और इसलिए नागरिक बंधुओं, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौमित्र खान ने सारे प्रदेश के युवाओं को आह्वान किया है, क्या ये नवान की इस भ्रष्ट मोटी दीवार के पीछे जहां भ्रष्टाचार चल रहा है,
उस दीवार को हिलाएंगे नव्यान की। और इसलिए आप सब 8 तारीख को आइए, सौमित्र खान के नेतृत्व में इस सरकार की दीवारें हिलाने के लिए हम सब 8 तारीख को वहाँ पर मिलेंगे। यही निवेदन करने आया था। एक अच्छी सरकार देंगे मोदी जी के नेतृत्व में, बंगाल का विकास करेंगे, महिलाओं का सम्मान बढ़ाएंगे। यही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए, कृषि बिल किसानों की प्रगति के लिए है, किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए है। जो ममता जी ने आरोप लगाया कि ज़मीन चले जाएगी, इसमें जो प्रावधान है वो सिर्फ फसल का ही व्यक्ति समझौता कर सकता है, ज़मीन का कहीं पर समझौता नहीं कर सकता। इसलिए किसी किसान की ज़मीन नहीं जाएगी। ममता जी भ्रम फैला रही है। जब कोई केंद्र सरकार ने कानून पारित कर दिया तो उस कानून को कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति भ्रम फैलाए तो ये आपराधिक षड्यंत्र है। मैं ममता जी को आरोप लगा रहा हूँ कि वह आपराधिक षड्यंत्र कर रही है। किसानों के हित की चिंता नहीं है। किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में 6,000 रुपया देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। सीधे सारे देश के किसानों के खाते में चले गया 90,000 करोड़ रुपया, किंतु 8,000-9,000 करोड़ रुपया आज भी बंगाल का प्रधानमंत्री जी के पास हैं। वो चाहते हैं कि किसानों के खाते में जाए, पर दीदी चाहती है कि पहले वो राज्य के खजाने में जाए, फिर वो कटमनी खाए, फिर टीएमसी के लोग कटमनी लें और किसानों को वो पैसा नहीं मिले पूरा। ये ममता जी चाहती है। ये षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देंगे। ममता जी, आप बहुत कटमनी खाई है, आपने बहुत सिंडिकेट राज चलाया, प्रदेश की जनता समझ गई है। अब आपकी ये कटमनी नहीं चलेगी और ये सिंडिकेट राज नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये सब समाप्त होगा और एक स्वच्छ प्रशासन हम देंगे। ইমিউনিটি গড়ে তুলুন আর ভাইরাসকে জয় করুন। আজই নিয়ে আসুন আর্সেনিকাম অ্যালবাম, নিম, তুলসী, হলুদ, অশ্বগন্ধা ও গুলঞ্চ নেকটার সমৃদ্ধ এনপিস ইমিউন ড্রপ। এনপি দ্যাট অ্যান্ড সন সিন্স 1849। ফোন নাম্বার 9875304822।